Okay, so going ahead with more questions, and as you see, the level of questions is it becomes easy. जैसे आप कोर्स में आगे जाते हो, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इजी लगता है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. A solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls without slipping. Without slipping मतलब with friction, मतलब rolling motion है, मतलब total kinetic energy, ये kinetic energy of rotation plus translation है. Down an inclined plane, तो एक solid cylinder है जो inclined plane से नीचे आ रहा है. So it is coming like this, down an inclined plane of length L. तो plane का length जो है वो L है. Even though we don't need this, but सिर्फ पता होना चाहिए. Length मतलब ये length L है और ये height H है plane का. Okay, so you have this length L of the plane and height basically H over here, right? What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches? Option number B, Q. QV equal to under root of 2gh 1 plus k square by r square. मैंने आपको बताया था सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क. डिस्क के लिए k square by r square की वैल्यू होती है half. Therefore v equal to under root of 2gh upon 1 plus half, that is equal to under root of 2gh 3 by 2. शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, हुआ है तो हुआ है. अंडर रूट ऑफ 4 by 3gh, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी है. A sphere rolls down an inclined plane of inclination theta. What is acceleration of the sphere when it reaches bottom? तो याद होगा आपको a equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square. अभी जब सिर्फ स्पीयर बोला है, आपको ऐसा बोला है क्या ये हॉलो स्पीयर है, ये सॉलिड स्पीयर है? नहीं बोला है. तो जब सिर्फ आपको स्पीयर बोला होता है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको सॉलिड स्पीयर कंसीडर करते हो. अगर आपको बोला नहीं है, सिर्फ स्पीयर बोला है, तो टेक सॉलिड स्पीयर. तो यू ऑलरेडी नो दैट k square by r square for a sphere is 2 by 5. Therefore a equal to g sin theta upon 1 plus 2 by 5. So that is equal to g sin theta, that is 7 by 5. So this is equal to nothing but 5 by 7 g sin theta. तो आ गया ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of angle of inclination theta. Without slipping, its linear acceleration along the plane will be. वापस से वही. तो a equal to g sin theta है, 1 plus k square by r square है. So you have 1 plus k square by r square. This is again simple question. G sin theta is बेसिकली sin 30 बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 30 दी है. रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो g by 2 sin 30 is half, तो g by 4. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन खत्म. तो एज यू सी हियर, एक बार आपको उस सब्जेक्ट का टच मिल गया तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सॉल्व होते हैं. ओके, गुड. तो डेफिनेटली वी आर at level 1 questions. Of course level 2 level 3 आना बाकी है, तो वो आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. A solid sphere rolls down an inclined plane. Its velocity at the bottom is v1. Then the same sphere slides down the plane without friction and let its velocity at the bottom be v2. Which of the following relation is correct? केस 1 में रोलिंग मोशन है. रोलिंग मोशन मतलब विथ फ्रिक्शन होता है. इसका मतलब v1 इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस सॉलिड स्पीयर का के स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2 by 5. तो v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh. This is 7 by 5, so that is equal to under root of 10gh by 7. ये v1 आ गया. केस नंबर 2 में you have just translation motion, क्योंकि
स्लाइड्स डाउन, तो स्लाइडिंग मोशन मतलब वहां पे रोटेशन नहीं है, मतलब इट इज जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, सो व्हेन इट इज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एक प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट सिर्फ स्लाइड होके आ रहा है, मतलब सिर्फ ट्रांसलेट होके आ रहा है, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आता है. ये कैसे आता है? What is the height? Height is h. What was initial velocity? U equal to 0. What is v square equal to u square plus 2ah? ये तो पता ही है आपको. You already know this. This is equation of kinematics. v square initial velocity 0 था, 2as कौन सा s? अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि यू स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि ये तो इस प्लेन पे नीचे आया. हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन होता है तो फिर ये मत यूज करो, तो डोंट यूज दिस. तो व्हाट यू कैन डू इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू कैन से ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है. यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, क्योंकि ए पे काइनेटिक एनर्जी था नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 था, बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं क्योंकि ग्राउंड लेवल है, हाइट 0 है. पोटेंशियल एनर्जी ए इज एट ए इज mgh एंड दिस इज हाफ mv स्क्वायर ओनली. यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का काम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं है. cancel and cancel, therefore v square equal to 2gh, therefore v equal to under root of 2gh. तो ऐसा भी आप कर सकते हो, बट आई वुड वांट कि आप जैसे ये पढ़ा ना विदाउट फ्रिक्शन या फिर स्लाइड्स डाउन, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आना चाहिए. खत्म बात, ये v2 है. therefore ratio of v1 by v2 is, तो what I should be doing is, मैं ये नहीं लिखने वाला. क्यों? बी लेट्स बी लिटिल स्मार्ट. हम नहीं करने वाले ये. क्यों नहीं करने वाले? तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट इन अ व्हाइल. तो ये आ जाएगा आपका v1 इज अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज v1 इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ 7/5. तो अपॉन अंडर रूट ऑफ 7/5. v2 क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7/5, मतलब v1 बाय v2 इक्वल टू रूट ऑफ 5/7. नन ऑफ दिस. कभी कभी गलती से घाई गर्दी में ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लेते हैं. नहीं नहीं, स्क्वायर रूट नहीं है वहां पे. यू नीड टू हैव अ स्क्वायर रूट. v1 by v2 is square root of 5/7, so you have to be little careful over here. Okay, so this is how you are supposed to solve this particular question. Next question: a ball of steel rolls down an inclined plane. Find the ratio of rotational kinetic energy to linear kinetic energy. Okay, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर का रेशियो पूछा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. तो दिस इज इजी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मैंने कल बताया था, वैसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल होता है हाफ mv स्क्वायर. आई होता है m के स्क्वायर, ओमेगा होता है v बाय r अपॉन हाफ m v स्क्वायर. हाफ m कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. मैंने वैसे बताया था, ये कल क्वेश्चन हुआ था. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ ट्रांसलेशन इज ऑलवेज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. और स्टील बॉल है, मतलब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2/5 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा. क्वेश्चन खत्म. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस. तो रोटेशनल डायनामिक्स में क्वेश्चंस है ही ऐसे, तो यू कैन नॉट बेसिकली go at much higher level, at least as far as CET is concerned. JEE नीट के लिए तो हम जाने ही वाले हायर लेवल पे. क्वेश्चन नंबर 30. A disc of mass 2 kg and radius 10 centimeter is rotating about an axis tangent to it and parallel to its diameter. Okay,
with angular velocity of 10 radian per second, the kinetic energy of disk is. हमारे पास एक डिस्क है और ये जो डिस्क है it is rotating about an axis tangent to it. So it is rotating about an axis tangent to it. Okay. And parallel to diameter. तो parallel to diameter इसलिए ऐसा दिखाया मैंने. अगर perpendicular to diameter बोला था तो फिर मैं ऐसी लाइन दिखाता. I should have shown something like this. But they're saying rotation is about tangent and parallel to the diameter. So like this. Okay. So what is काइनेटिक एनर्जी? मैं इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, इवन दो जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही फॉर्मूलाज बताए हैं, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. तो आपको पता है सबसे पहले यू शुड नो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास C एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क. मतलब मैं IZ इक्वल टू IC की बात कर रहा हूं. ये mr²/2 होता है, ये पता होना चाहिए. फिर अगर मुझे अबाउट डायामीटर निकालना है तो मैं दो एक्सिस लूंगा. मैं एक एक्सिस ऐसा लूंगा, मैं एक एक्सिस ऐसा लूंगा, और ये जो दो एक्सिस है, मतलब ये जो x और y एक्सिस है, ये डिस्क के प्लेन में है, मतलब ये डायामीटर्स है. तो मैं बोल सकता हूँ that Ix is equal to Iy, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x and y is Id. फिर हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करके Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy यूज करेंगे. तो फिर Iz is Ic, Ix is Id, Iy is Id, तो that is 2 times of Id. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर is IC by 2, मतलब mr²/2 that is mr²/4. तो ये जो रोटेशनल एक्सिस है नीचे सेकंड केस में ID, when the disk rotates about its diameter that is mr²/4. मैंने ऑलरेडी करवाया है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. तो आई वांट यू टू नो दिस क्योंकि क्वेश्चन ओरल है ये, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ये O पॉइंट है. अभी अगर IO होता, मतलब if the disk is rotating about tangent and parallel to diameter, obviously this H is equal to R. अब आप theorem of parallel axis यूज करके बोलोगे moment of inertia about point O equal to moment of inertia about diameter plus mh square. तो that is mr²/4 plus mh की वैल्यू वापस r, तो 5/4 mr². तो my expectation from you was कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. डायरेक्टली you should know this डायरेक्टली. ओके, अगर ये पता है, क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? हाफ I ओमेगा स्क्वायर. हाफ I, व्हाट इज I? 5/4 mr² ओमेगा स्क्वायर. तो सिर्फ I की जगह पे ये डाला है मैंने. तो 1/2 5/4 m is 2, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, उसका स्क्वायर तो 10⁻⁻2. ओमेगा इज 10 स्क्वायर इज 100. ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल. 5/4 is 1.25 जूल. 1.25 जूल इज ऑप्शन नंबर सी. मतलब इन रियलिटी सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है. सिर्फ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का रिवीजन होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरा ये करके दिया है, अदरवाइज इट वाज जस्ट दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट of mass 0.5 kg and edge, मतलब side of square is 20 centimeter, is rotating about one of its diagonal at a rate of 180 revolutions per minute. The angular momentum of the square plate about its axis of rotation is. Simple है.
हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, तो वी हैव अ स्क्वायर प्लेट। ओके, मोर और लेस लाइक दिस। तो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, it is rotating about one of its diagonal. So rotational axis is something like this, rotating about one of its diagonals. Okay, so as about this axis it is rotating. The rotation is about this particular axis, about diagonal. Okay, और आपको दिया है मास 0.5 kg, आपको ये साइड दिया है विच इज A, विच इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻1 मीटर। आपको n दिया है 180 rpm, मतलब 180/60 rps, दैट इज 3 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब ओमेगा मिल जाएगा आपको 2πn यहाँ से, मतलब 2π × 3 मतलब 6π radians per second, rad per second, you will have omega. Okay, now what you are being asked, you are being asked angular momentum. What is angular momentum? I omega. If you remember, हमने ये derive किया था, we have derived this, that L is I omega. अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये I मतलब moment of inertia for a square plate कैसे फाइंड करते हैं। तो I don't want you to find out, I want you to remember it is ma²/12, that's it। क्योंकि हर चीज हम डिराइव करने के पीछे नहीं जा सकते, अगर हम हर चीज डिराइव करने के पीछे लग जाएंगे तो फिर इट इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। वैसे हो सकता है डिराइव, बट we don't want to do it, otherwise you can take it as an assignment, that is better thing। so this is assignment, assignment अच्छी बात है। assignment is this, prove I about diagonal for a square plate is ma²/12। good, so ma²/12 आता है ये ओमेगा। ओमेगा तो हमारे पास वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास हमारे पास है 0.5, ए हमारे पास है 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर अपॉन 12, ओमेगा हमारे पास है 6π, तो 1 जा एंड 2 जा। ओके, ये 0.5 × 2 इज 1, तो 10⁻⁻2 अपॉन 2, 1/2 is 0.5 और पाई भी है वहां पे, तो पाई को भूलना नहीं। तो 0.5 पाई इंटू 10⁻⁻2 ऐसा, तो 5 पाई इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट। गुड, अभी ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसा नहीं है, मतलब समथिंग वी हैव मिस्ड आउट। ओके, तो अभी क्या मिस हुआ देखते हैं। ma² ma²/12, that is correct, into omega is 6π, तो m is 0.5, a² तो 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर 4 आएगा। ओके, गुड, तो यहाँ पे गलती हो गई, इट्स ओके। 0.5 into 2 square is 4 into 10⁻⁻2 upon 2 pi, हो गया अब सॉल्व। नाउ इट इज ओके, 1 जा 2 जा, this is 2 into 0.5 is 1, तो pi into 10⁻⁻2, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये गलती भी हो सकती है कभी कभी, 2 का स्क्वायर भूल गए तो 5 पाई आंसर लिख दोगे। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, 2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, वी हैव टू स्क्वायर, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दैट थिंग आल्सो। ओके, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of gyration of a thin spherical shell of a radius r about its tangent is,
thin spherical shell about its tangent. Okay, तो हमारे पास एक thin spherical shell है and you should know radius of gyration for a thin spherical shell about diameter. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ that you should know k square by r square for hollow sphere is 2/3. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ that you should know IC is equal to mk square, but k square about diameter है, ये about diameter है. This is equal to, मैंने अभी बताया 2/3 r square, where r is this. करेक्ट, गुड. तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा IC is equal to m 2/3 mr square. तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया है, हमने ये नोट्स में लिखा है, फॉर अ हॉलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर मतलब पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास is 2/3 mr square. For a solid sphere it is 2/5 mr square. ओके, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है रेडियस ऑफ gyration अबाउट इट्स टेंजेंट. और इनफैक्ट स्फीयर के लिए चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट तो एक ही है. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते ना हम टेंजेंट इन इट्स प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. वो जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रिंग हो, जैसे डिस्क हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे होता है. यहाँ पे ये टेंजेंट इन द प्लेन है, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट प्लेन में है. जब स्फीयर जैसे ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे टेंजेंट आप कैसा भी ड्रॉ करो, वो टेंजेंट जो है वो डायामीटर को पैरेलल होगा ही होगा. तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेसिकली. इमेजिनेशन, ओके, यू हैव टू इमेजिन. अब ये O हो गया, मतलब हमको IC पता है, IC पता है. अब IO निकाल लेते हैं. कैसे निकालोगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, you can say IO equal to IC plus MH square. This is H, but H is equal to R. और IC कितना है? 2/3 mr square plus MH मतलब वापस R, तो mr square. Therefore IO is equal to 2/3 plus 1. So that is nothing but 5/3 mr square. Good. Equation number 1. You should know that how do you find out radius of gyration. तो आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन. अगर आपको याद होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mk स्क्वायर. याद है हमने ये रेडियस ऑफ gyration डिफाइन करते वक्त I इक्वल टू mk स्क्वायर लिखा था. सिर्फ यहाँ पे k अबाउट टेंजेंट है तो kt स्क्वायर, और IO क्योंकि मैंने इस पॉइंट को O बोला है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O. दैट्स इट. ओके, तो हमने इनको कंपेयर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड IO है, तो राइट हैंड साइड सेम होंगे. 5/3 mr स्क्वायर इक्वल टू mkt स्क्वायर. m कैंसल, तो आपको मिल गया kt का स्क्वायर एज 5/3 r स्क्वायर. तो ये आ गया आपका 5/3 अंडर रूट ऑफ 5/3 मतलब. सो kt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3 r. ऑप्शन नंबर बी. एक गलती कहाँ होती है? एक गलती यहाँ होती है जब आप सॉलिड स्फीयर की बात करते हो. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ gyration k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3 r. ये अबाउट डायामीटर होता है सॉलिड स्फीयर का.
अंडर रूट ऑफ 5/3 r, ये रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr², ये अबाउट डायमीटर होता है हॉलो स्फीयर का 5/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अबाउट टेंजेंट होता है। ओके, अगर इसका भी आपको अबाउट टेंजेंट निकालना है तो फिर वापस से प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करोगे, मतलब यहाँ पे 5 कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 5/3 + 1 दैट इज 8/3। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। तो कंफ्यूजन मत करना, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया about hollow sphere about its tangent. So this is how you are supposed to solve this particular question. Okay, so be careful. मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ that you have to be careful while doing such questions. Okay, so we have completed 8 questions. So it's time for us to stop. Bonus time for you because we are stopping very early today.